Good morning, students. This is Ankita Keshirwani here, your computer teacher. So, students, as you know, in our last video, we have started our chapter number 3, that is working with Windows 7. Okay, working with Windows 7, in which we have seen that what is Windows 7, how to work in a Windows 7, what are the features, what are the various features of Windows 7. Okay, and about starting window, how to start a window, what is file, what is the computer icon, what is a folder, how to create a file, how to create a folder, and how to open and how to rename a files and folders. Okay, so that are some topics that we have already covered in our last video, in our previous videos. Understand? So today I am going to start our new topic, that is using context menu. Using context menu. Okay, so this is our today's topic. Okay, so let's start. When you right click on any icon, a pop-up menu appears, which is called context menu. Okay, which is called context menu. Using this pop-up menu, you can save your time to access commands. Okay, so when you right click on any icon, ठीक है, icon किसको बोलते हैं? You can see here in my desktop, these are some icons. Okay, and when you click on these icons, when you right click on this, okay, when you right click on any icon, a pop-up menu will appears, which is called context menu. Using this pop-up menu, you can save your time to access commands. Right clicking on the different areas and objects will display different sets of commands. The context menu is also called the shortcut menu. So students, please underline this line. The context menu is also called the shortcut menu. Okay, so you can see here, when you right click on any icon, okay, so ये बात याद रखना, आपको क्या कौन सा क्लिक करना है? राइट क्लिक. सिंपली क्लिक करोगे तो क्या होगा? दैट फोल्डर विल बी ओपन. ओके, बट यू हैव टू right click on that icon. When you right click on any icon, for example, I am right clicking on this June folders. Okay, so here you can see the different list. Okay, मैं यहाँ पे अभी दूसरे icons पे करती हूँ, मैं this PC में कर लेती हूँ. So here you can see the open, pin to quick access, manage, pin to start, different functions you can see, different options you can see. So these are some different sets of commands which save your times. Okay, using these commands you can perform any task by saving your time. Okay, understand? मतलब यहाँ से अगर आपको फोल्डर ओपन करना है तो आप क्लिक करें ओपन में. पिन टू क्विक एक्सेस में भी आप क्लिक कर सकते हैं, फिर वो पिन हो जाएगा आपके टास्क बार में. पिन टू स्टार्ट, मैप नेटवर्क, क्रिएट शॉर्टकट. अगर आपको इसके शॉर्टकट आइकन क्रिएट करना है तो डायरेक्टली फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट शॉर्टकट. अगर आपको डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं. रीनेम करना है, डायरेक्टली रीनेम कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज पे चेक करनी है तो आप डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? और किसी पे राइट क्लिक करके देख लेते हैं. ठीक है, मैं इस वर्ड पैड पे देख लेती हूँ, वर्ड वाले पे. सो हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन सी सेंड टू, अगर आपको किसी को इसे सेंड करना है. और जब आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जैसे कि जिस पे एरो बना होगा, जैसे यहाँ पे एरो बना है, इसका मतलब है कि इसके अंदर और मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल है. अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे जिनके व्यू में अगर अवेलेबल एरो बना है, साइड एरो दिख रहा है, इस टाइप के जो एरोज बने होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एरो बना है, तो ये जो एरो दिख रहा है इसका मतलब है कि इसके आगे अगर हम इस पे
अपने माउस कर्सर को देखो, मैं जैसे इस माउस कर्सर को सेंड टू के ऊपर लाती हूँ, व्हेन आई ब्रिंग माय माउस कर्सर ऑन दिस सेंड टू ऑप्शन, देन यू कैन सी हियर अ new context menu list will be appear. Okay, so this is, you can see, understand? So this is about using context menu. So when you right click on any icon, you can see different types of a pop-up menu will appear, and which is called the context menu. So this menu, okay, this list, this menu is known as the context menu. Okay, this menu is known as the context menu. Understand everyone? Okay, so now see, राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. ओके, अभी क्या था, ये वाला जो लाइन था यहाँ पे जब हमने अभी पढ़ा, यहाँ से ये वाला, ये पैरा क्या बोल रहा था, व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन, यानी कि जब आप किसी एक आइकन पे राइट क्लिक करते हैं तब क्या होता था कि कंटेक्स्ट मेन्यू आपको ओपन होके मिलता था. Okay, and from which you can, using this pop-up menu, you can save your time to access commands. Right clicking on the different areas and the object will display different sets of commands. The context menu is also called the shortcut menu. अच्छा, context menu को और क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं. तो ये क्या था बेटा कि ये जब हम राइट क्लिक करते हैं किसी आइकन्स पे, ठीक है, जो भी डेस्कटॉप में हमारे पास ये जो आइकन्स है ना, दिस पीसी, जून, इंग्लिश, फायरफॉक्स, ये जो फायरफॉक्स पे भी करेंगे, तो ये जो सारे हमारे पास लिस्ट आ रही है, दिस इज नोन एज द कंटेक्स्ट मेन्यू और शॉर्टकट मेन्यू. अंडरस्टैंड? ओके, एंड व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, अभी तो हम राइट क्लिक कर रहे थे आइकन्स में, अब मैं डेस्कटॉप पे अगर कहीं पे भी जाके ब्लैंक एरिया पे, ठीक है, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, ब्लैंक एरिया पे जाके अगर कौन सा क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, ठीक है. सो व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, यू विल फाइंड अ मेन्यू विद द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, फिर से आपको कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे. The personalized options can be seen at the bottom. Okay, आपको बॉटम एरिया पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा, पर्सनलाइज ऑप्शन. यूजिंग द पर्सनलाइज ऑप्शन यू कैन चेंज द बैकग्राउंड, सेटिंग्स ऑफ द डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस ऑफ आइकन्स, मेन्यूज, मैसेज बॉक्स, फॉन्ट, कलर, एक्सेट्रा, एंड कैन ऑल्सो गिव वेरियस विजुअल इफेक्ट्स टू दैम. ठीक है, अगर ये आपका डेस्कटॉप का ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे कुछ भी आइकन नहीं है, ओके, यू कैन सी हियर आई एम क्लिकिंग राइट क्लिक हियर. मैंने जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक किया, यू कैन सी द डिफरेंट ऑप्शंस. ठीक है, एक लिस्ट मिली है विद द डिफरेंट ऑप्शंस, एंड हियर एट द बॉटम साइड यू कैन सी दिस इज अ पर्सनलाइज ऑप्शन. ओके, सो सेलेक्ट, मैं इस पे पर्सनलाइज पे क्लिक की हूँ, तो ये सेटिंग ऑप्शन मेरा ओपन हो गया. ये है पर्सनलाइज ऑप्शन. यू कैन सी हियर दिस इज अ पर्सनलाइज ऑप्शन. ये विंडोज 7 में भी अवेलेबल होगा. अगर आप ब्लैंक एरिया में कहीं पे भी जाके क्लिक करते हैं आपको पर्सनलाइज ऑप्शन मिलेगा. मेरे इस लैपटॉप में अभी विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है. ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें कंफ्यूज मत होना. हो सकता है कि विंडोज 7 में कुछ इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा, बट ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे वहाँ पे भी. इन विंडोज 7 ऑल्सो यू कैन ऑल्सो चेंज योर बैकग्राउंड कलर्स, थीम्स, फॉन्ट्स. ओके, सो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ये बैकग्राउंड है. ठीक है, बैकग्राउंड में पिक्चर्स है. सो फ्रॉम पिक्चर्स, सॉलिड कलर, स्लाइड शो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और फ्लावर्स में ही आपको स्लाइड शो मिल रहा है. स्लाइड शो लोगे तो होगा, पर मेरे को नहीं चाहिए, मुझे पिक्चर्स चाहिए. ठीक है, तो मैं पिक्चर्स ले रही हूँ. फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट एनी वन पिक्चर टू चेंज योर बैकग्राउंड. ओके, मैंने कौन सी सेलेक्ट करूँ, ठीक है, यही ठीक है, ये फ्लावर्स ले लेती हूँ. नहीं, ये ठीक है. ओके, दिस वन इज गुड. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, और इधर यू कैन सेलेक्ट पिक्चर्स फ्रॉम हियर, और यू कैन ब्राउज एनी पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट. Understand? But that this time I am not from the internet also, or your
यहाँ जो भी आपके फोल्डर्स में सेव होगी, पहले से कंप्यूटर में जो पिक्चर सेलेक्ट होंगी, सेव्स होगी, वहाँ से भी आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये ब्राउज का ऑप्शन उसके लिए होता है, इंटरनेट से नहीं करेंगे, आपके कंप्यूटर से ब्राउज करेंगे। अंडरस्टैंड। नाउ चूज अ फिट कि आपको पूरे किस में चाहिए, आपको सिर्फ सेंटर में चाहिए, उसको स्पैन करना है, टिल करना है, स्ट्रेच करना है, फिट करना है। मैं फिल में रखी हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड कलर हमने बैकग्राउंड पिक्चर्स हमने सेलेक्ट कर ली। कलर्स में देखोगे, पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड मैंने पिक्चर ले ली, अब देखते हैं। यू कैन सी बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। पहले दूसरा था, पहले हमारे में पूरा अम्ब्रेला था, अभी क्या है, एक नाइट का सीन है, एक सीनरी है। ओके, सो ये हो गए हमारी हाउ टू चेंज अ बैकग्राउंड। ओके, अंडरस्टैंड। अब चलो फिर से चलते हैं पर्सनलाइज्ड सेटिंग्स में, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कलर्स चेंज करके देखते हैं कलर्स से क्या होता है। सो सेलेक्ट कलर्स ऑप्शन, यू कैन सी द ऑप्शंस, चूज योर कलर, कस्टम और लाइट एंड डार्क। सो यहाँ पे चूज योर डिफॉल्ट विंडोज मोड का ऑप्शन, देखो इसको जब तुम लाइट करोगे, सो यू कैन सी दिस टास्क बार का कलर, देख रहे हो यहाँ पे भी सब लाइट हो गया है, यहाँ पे देखो सब लाइट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ये सब कैसे हो गया, लाइट कलर पे हो गया, पहले ये डार्क था, अब ये लाइट हो गया। यहाँ पे नीचे देखो टास्क बार भी लाइट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से डार्क कर रही हूँ। मैंने इसे लाइट किया था, तो देखो इसका बैकग्राउंड में कलर कैसे हो गया, लाइट हो गया। तो मैं इसे अब फिर से डार्क कर देती हूँ। ठीक है, कलर्स पे गए, और यहाँ से आप अपना कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, इधर यू कैन चूज़ एनी कलर्स, और मैं इसको यहाँ पे डार्क कर रही हूँ अभी। ओके, या फिर आप अपने कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने इसे डार्क मोड पे रखा है, आप चाहे तो कोई कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट डार्क मोड इज़ गुड। Here you can see the themes option. Okay, so from here you can select your theme and you can change the themes also. You can change any themes, for example फ्लावर्स वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने फ्लावर्स थीम ले लिया। अब देखो फ्लावर्स थीम लिया है तो बैकग्राउंड में तो फ्लावर आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, साथ ही साथ में जो इसके आइकन्स है, देखो आइकन्स में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ है। फ्लावर्स के जो कलर है वो पिंक कलर का है, मैं आपको दिखाती हूँ इसके थीम्स चेंज करके। थीम्स चेंज हो चुके हैं, यू कैन सी जो स्टार्ट बटन है वो पूरा पिंक कलर का हो गया है, अब मुझे सब चीज़ पिंक पिंक में कलर में दिख रहा है। तो यहाँ से आप अपने आइकन्स को, अपने डेस्कटॉप को रीडेकोरेट कर सकते हो। ओके, सो हमने पढ़ा था ना फीचर्स ऑफ विंडोज 7 में कि वी कैन redecorate our desktop, we can redecorate our windows, so we can redecorate our desktop. So this is a feature of Windows 7. From the Windows 7 onwards, this features allows us to change the background color, background picture, background font, okay, and screensaver. So from here you can change, you can redecorate your desktop according to your choice. Okay, so this option will be provided you by this personalized option. Okay, so when you right click on the blank area of the desktop, you will find a menu with the list of options. The personalized option can be seen at the bottom. Using the personalized option, you can change the background change कर सकते हैं, सेटिंग्स ऑफ द डेस्कटॉप, जो भी सेटिंग्स है डेस्कटॉप के आप वो चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर, ठीक है, स्क्रीन कितने टाइम्स के लिए से ऑन रहेगी। ठीक है, जैसे हम मोबाइल में करते हैं ना कि हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी मोबाइल की स्क्रीन ऑन है, तो वो अपने आप कुछ सेकंड्स के बाद में हम सेटिंग करके रखते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो PDF से देख के अगर हम क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन करते होंगे तो क्या होता होगा, बार बार फ़ोन अपने आप बंद हो जाता होगा, हमको फिर से उसे ऑन करना पड़ता होगा पावर बटन से।
तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, सेटिंग्स में जाके स्क्रीन सेवर का टाइम इंक्रीज कर देते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 1 आवर, ठीक है। तब तक वो स्क्रीन बंद ही नहीं होगी जब तक आप उसको मैनुअली अपने हाथ से बंद नहीं करोगे, अंडरस्टैंड। सो वो स्क्रीन सेवर का ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, अपने कंप्यूटर में भी सेम होता है जैसा कि मोबाइल फोन्स में होता है। मेन्यूज है, मैसेज बॉक्स, फॉन्ट कलर, यू कैन चेंज एनीथिंग एंड कैन ऑल्सो गिव वेरियस विजुअल इफेक्ट्स टू दैम, ठीक है। सो ये हुआ पर्सनलाइज्ड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखो व्हाट इज राइट क्लिकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, राइट क्लिक कर रहे थे, आइकन्स पे राइट क्लिक किया तो हमने देखा कि जो हमको लिस्ट मिलती है उसे कंटेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। जो जिस भी आइकन पे हम सेलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। किसी ब्लैंक एरिया पे, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में जाके क्लिक करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, पर्सनलाइज्ड ऑप्शन हमको बॉटम में एरिया में मिलता है, और वहां से उस पर्सनलाइज्ड ऑप्शन पे जाके हम क्या कर सकते हैं, पूरी डेस्कटॉप की जो सेटिंग्स होती है, व्हेन वी कैन चेंज एनी सेटिंग, वी कैन चेंज मल्टीपल सेटिंग्स ऑफ अवर डेस्कटॉप, ठीक है। वहां से पूरी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन सी द राइट क्लिकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम आइकन और ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब आइकन एंड ऑब्जेक्ट्स क्या सेम थिंग्स है, क्या भी अलग अलग है ना, ये इस चीज पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं आइकन्स पे। सो व्हेन यू क्लिक ऑन एनी आइकन of the desktop you will find a entirely different menu. The properties option will be found at the bottom of the list. So icon and an object both are the same things, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम थिंग है। आप जब किसी आइकन पे राइट क्लिक करते हो तो आपको जो लिस्ट मिलती है उस लिस्ट को बोलते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू, और क्या बोलते हैं, शॉर्टकट आइकन, ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेन्यू। एक तो बोलते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू और एक क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेन्यू। सो व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन और एनी ऑब्जेक्ट, सो आइकन एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेम थिंग्स, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन इट, ये दोनों ही सेम चीजें होती है। जब आप इस पे राइट क्लिक करते हैं तो यू कैन सी दिस लिस्ट विल ओपन एंड दिस लिस्ट इज नोन एज द कंटेक्स्ट मेन्यू और द शॉर्टकट मेन्यू, understand। and here you can see at the bottom area you will get a properties option, ठीक है। अब मैंने दिस पीसी की मैं राइट क्लिक किया और मैंने जाके उसकी प्रॉपर्टीज चेक की तो मुझे पता चला कि मेरा जो पीसी है उस पीसी का मॉडल नंबर ये है, प्रोसेसर ये है, मेमोरी कितनी है, रैम कितना है, 4 GB है, सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ से मैं अपने प्रॉपर्टीज, मतलब मैंने अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज चेक कर ली कि मेरे कंप्यूटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अंडरस्टैंड। अगर मुझे ये फोल्डर की प्रॉपर्टी, जैसे ये एक मैंने बनाया था, ये फाइल है, ठीक है, ये इंग्लिश नाम से एक फाइल सेव है। सो व्हेन आई राइट क्लिक ऑन दिस फाइल you can see the properties option at the bottom side. So when I click on this properties option you can see लोकेशन। सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टी में क्या पता चला, लोकेशन कहाँ पे, ये फाइल कहाँ पे स्टोर है, तो ये सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर्स के अंदर, वेलकम फोल्डर्स के अंदर, डेस्कटॉप में सेव है। इसकी साइज कितनी, 86.7 KB किलो बाइट है, ठीक है। साइज ऑन डिस्क, डिस्क पे इतनी, इसकी साइज कितनी है, इतनी है। क्रिएटेड कब क्रिएट किया गया था, 25 जून को किया गया था। 17 मीन्स होता है 5 o'clock, ओके, एंड 41 मिनट्स एंड 41 सेकेंड्स पे क्रिएटेड हुई थी। मॉडिफाइड कब किया गया था, एक्सेस कब किया गया था, ये सारी आपको यहाँ से फाइल्स मिल गई। सिक्योरिटी पे जाके आप इसे सिक्योर भी कर सकते हो, और भी आपको डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड प्रीवियस वर्जन, ये सब, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फोल्डर, एनी आइकन, एनीथिंग, okay। So from here you will get the properties, you can change the properties, you can see the properties of the various icon, various object, various folders, various files, ठीक है। जिसकी भी आपको प्रॉपर्टीज देखनी है उस आइकन पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको बॉटम साइड पे प्रॉपर्टीज मिलेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे जाना है तो आप किसी आइकन पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको जो लिस्ट ओपन होगी उस लिस्ट को क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं, और शॉर्टकट मेन्यू भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। और उसी लिस्ट पे आपको एट दी बॉटम साइड यू विल गेट द न्यू ऑप्शन दैट इज नोन एज दी प्रॉपर्टीज, ओके। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टीज ऑप्शन you can see the size, you can check the
type of files, you can check the check the location of files, anything you can check. Okay, so this is about how about the properties, how to check the properties of any file and folders and icons. Understand? And this is your last topic, you can see. So this is completed. What is a shortcut? Shortcut क्या होता है? A shortcut is an icon that provide an easy and quick method to open any application or software that we use frequently. ठीक है, जो भी ऑप्शंस मतलब जो भी आप फाइल्स सॉफ्टवेयर हो गए या प्रोग्राम हो गए, ये आपको कोई फाइल्स एंड फोल्डर्स है, ठीक है, वो आपको क्विकली एक्सेस करना है जो आप डेली यूज़ करते हैं. तो डेली यूज़ करने के लिए, उसे क्विकली एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन बना के रख देंगे. क्या करेंगे? शॉर्टकट आइकन बना के रख देंगे. ओके, सो देयर इज अ स्मॉल जंप एरो, देयर इज अ स्मॉल जंप एरो, देयर इज अ स्मॉल जंप एरो प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द शॉर्टकट आइकन. ठीक है, शॉर्टकट आइकन के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगा एक जंप एरो, वो एरो खुद की तरफ होगा, एंड दैट एरोज इज नोन एज jump arrow. Okay, so when you double clicking on the shortcut icon will open the files or programs it represents. ठीक है, जो भी जैसे कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिनट मैं आपको एक चीज़ ओपन करके दिखाती हूँ. मुझे क्लास 4 का फोल्डर ओपन करना है, तो मैंने क्लास 4th का फोल्डर दिस पीसी के अंदर ई ड्राइव के अंदर, ठीक है, ये ई ड्राइव है, न्यू वॉल्यूम ई ड्राइव के अंदर क्लास 4 के नाम से यहाँ पे सेव करके रखा है. ठीक है, तो मुझे अगर क्लास 4 के फोल्डर तक पहुँचना था तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दिस पीसी में गई, देन आफ्टर क्लिक ऑन न्यू फाइल, न्यू वॉल्यूम ई पे गई. ठीक है, यहाँ से पाथ दिख रहा है, पहले दिस पीसी पे गई, फिर न्यू वॉल्यूम ई पे गई. अब मेरे को क्लास 4 पे जाना है, तो क्लास 4 के अंदर मैं इस पे, अब मान लो कि मुझे हिंदी में देखना है कि क्या क्या हुआ है, तो हिंदी के में मेरे पास ये सब है, तो दिस पीसी में गई, फिर न्यू फाइल में, न्यू वॉल्यूम ई में गई, फिर क्लास 4 में गई, फिर उसके अंदर हिंदी में आई. अब मुझे क्लास 4 को डायरेक्टली एक्सेस करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गई, ठीक है, दिस पीसी में, देन न्यू वॉल्यूम ई. अब यहाँ क्लास 4 दिख रहा है फोल्डर, राइट क्लिक की उस फोल्डर पे, न्यू पे गई. ठीक है, न्यू पे गई और ये शॉर्टकट करके आइकन दिख रहा है मुझे, शॉर्टकट. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है शॉर्टकट, मैंने उस पर क्लिक कर दिया. सो ये मुझे कुछ पूछ रहा है, व्हाट आइटम वुड यू लाइक टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर. तो यहाँ पे आप जो भी उसका वो है आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस पीसी मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया. ओके, डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट जो है वो बन जाएगा. ठीक है, एक मिनट. So here you can see this is a shortcut icon for class 4th. Wait a second. सॉरी, वो वैसे नहीं क्रिएट करना था. जब वहाँ पे जैसे आप मैंने क्या किया कि डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया था, तो वो यहाँ पे डेस्कटॉप का शॉर्टकट आइकन इस फाइल के अंदर बन गया था, वो नहीं करना है. जैसे क्लास 5th का फॉर एग्जांपल, क्लास 4th का और डेस्कटॉप पे ऑलरेडी शॉर्टकट आइकन बने हुए हैं, इसलिए मैं क्लास 2 का करके दिखाती हूँ. ठीक है, सो क्लास 2 का अगर मुझे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, उस पर राइट क्लिक करूँगी. ठीक है, ये वाला, तो आपके पास ये वाला आइकन आना चाहिए. ठीक है, जैसे ही मैंने उस पर राइट क्लिक किया, यू कैन सी दिस लिस्ट कंटेक्स्ट मेन्यू विल ओपन. ओके, एंड हियर यू कैन सी send to options. Okay, so when you click on this send to option, when you bring your mouse on this send to option, you can see a new list will open, and here you can see the desktop create shortcut. desktop और ब्रैकेट में लिखा है create shortcut, means क्लास 2 का जो शॉर्टकट है वो कहाँ क्रिएट होगा, डेस्कटॉप पे. सो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किया. अब डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं. हियर यू कैन सी द क्लास 2 शॉर्टकट. क्लास 2 का शॉर्टकट है, जैसे इस पर क्लिक किया मुझे डायरेक्टली कहाँ पे लेके चले गया, डेस्कटॉप क्लास 2 के अंदर. तो मुझे दिस पीसी, न्यू वॉल्यूम ई, फिर से क्लास 2, ये 3 चीज़ों पे सेलेक्ट करने की जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो मेरा टाइम सेव हो गया. अंडरस्टैंड? सो टू सेव योर टाइम,
you can select, you can create a shortcut for any software, for any program, for any folders and for any files. Understand? So this is about how to create a shortcut for any files and folders and for any programs. Understand? So this is also completed. Now you can see the creating a shortcut icon for the Microsoft Word. So click on the start button and select all programs. Select the Microsoft Office suite and then place the cursor on the Microsoft Word 2010 program. राइट क्लिक ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम. जैसे यहाँ पे इसने राइट क्लिक किया देखोगे आप लोग ये वाली स्क्रीन ओपन होती है. ठीक है. एंड a pop-up menu will appear. Select send to option and you will find another cascading windows menu and now click on the desktop create shortcut option. जैसे मैंने शॉर्टकट आइकन यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाया फोल्डर का, ये सेम वैसे ही है. ठीक है. बस मेरे विंडोज़ 10 में ये ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको इसका बता नहीं पाऊँगी. सो आप अपने विंडोज़ 10 में इसे ट्राई कीजिएगा, विंडोज़ 7 में इसे ट्राई कीजिएगा. ठीक है. और जब व्हेन स्कूल विल रीओपन आई विल शो हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. सेम मेथड है जैसे कि एक फोल्डर्स और फाइल सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं, सेम वैसे ही इसके लिए भी हम करते हैं. वो क्या करेंगे, डायरेक्टली सी ड्राइव पे जाके भी कर सकते हैं जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स स्टोर होंगे. ठीक है. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. ओके. And this is the recap the chapter. These points are very important, so please read this, revise this chapter using these points and come on this. You can see the brain development or your exercise point will be open from here. Here you can see the first point, that is fill in the blanks. Okay. So first वाला क्या है, when we switch on a PC, the first screen that appears on a monitor is known as the, when you switch on a PC, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, the first screen that appear on a monitor is known as, ये स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. ओके. what we say, डेस्कटॉप. ये इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, what we call this screen, yes, डेस्कटॉप. ओके. सो आंसर क्या आएगा, डेस्कटॉप इज द फर्स्ट आंसर. यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डेस्कटॉप आएगा. ठीक है. सो व्हेन वी स्विच ऑफ आवर कंप्यूटर, व्हेन वी स्विच ऑन आवर कंप्यूटर, अ न्यू स्क्रीन विल ओपन and a new screen for the first screen that appears on the monitor is known as desktop. Okay, desktop. सो ये मैं PDF भेजूंगी, वीडियो से मत लिखना, मैं PDF भेजूंगी आपको, PDF में से ही देख के लिखना, उसमें सही रहेगा. इसमें हो सकता है वैसे मिस्टेक तो नहीं होगी, बट आप PDF प्रीफर करना. और एक बात और कि आपको बस नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर्स लिखना है. चैप्टर नंबर 3 में नोटबुक में आपको जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रही हूँ वो आप नहीं करेंगे. ठीक है. ये इस बार आपको नोटबुक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी लिखने हैं. ठीक है. नोटबुक में चैप्टर नंबर 3 में आप ये जो C है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एंड एक E करके क्वेश्चन होगा, आंसर द फॉलोइंग. ठीक है. तो आपको C और E ये दो चीज आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ठीक है. क्योंकि जो C है इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये बहुत ज़्यादा बिग्स है, इसलिए आपको इसे नोटबुक पे लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे नहीं आएंगे. सो व्हेन वी स्विच ऑन अ PC, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन अ मॉनिटर इज नोन एज द डेस्कटॉप. सेकेंड वाला क्या है देखते हैं. Dash means ability to perform more than one task at a time. Okay, so more than one task means multiple tasks. Okay, more than one task means multiple tasks. So tasking means performing any task. Okay, so the function of performing any task means tasking. सो मल्टीपल टास्क आप एट अ सिंगल टाइम परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कि एक सिंगल टाइम में आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है. तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो भी विंडोज जो है वो मल्टीटास्किंग है. क्योंकि मल्टीटास्किंग कैसे है, अभी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मैं आपको ये PDF ओपन करके पढ़ा भी रही हूँ, साथ में इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी जो वॉइस है वो रिकॉर्डिंग हो रही है. ठीक है. तभी तो ये वीडियो बन रहा है.
इसके साथ साथ मैं अभी आपको जो भी प्रैक्टिकल दिखाना रहता था मैं वो भी दिखाती थी इसको मिनिमाइज करके। तो ये मल्टीपल टास्क मैं सेम टाइम में परफॉर्म कर रही हूँ। तो दिस इज दैट इज वाई CPU computer is known as the multitasking. Okay, so multitasking means ability to perform more than one task at a time. तो यहाँ पे आएगा multitasking, सेकेंड वाला multitasking. Okay, ये हो गया सेकेंड। थर्ड है we can pin our favorite program on the task bar. We can pin our favorite programs on the task bar. थर्ड में आएगा task bar. अपने फेवरेट ये है टास्क बार। द बॉटम एरिया ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज द टास्क बार एंड इन द टास्क बार यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम्स इजीली। अंडरस्टैंड? सो दिस इज थर्ड वन, टास्क बार। फोर्थ वाला देखो, द टेक्स्ट फीचर अलाउज अस टू टर्न द ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट एंड मेक द डेस्कटॉप विजिबल। ये मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे आएगा एरोपिक फीचर, फोर्थ वन। ओके, एरोपिक फीचर। यहाँ पे देखो, द डैश आइकन प्रोवाइड्स एन इजी एंड क्विक मेथड टू ओपन एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कौन सा आइकन आएगा जो हमको क्विक एक्सेस करवाता है फाइल्स एंड फोल्डर्स या किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी एप्लीकेशन को? यस, शॉर्टकट आइकन। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कि शॉर्टकट आइकन कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, अभी देखा था ना। तो शॉर्टकट आइकन से हम किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट आइकन वी कैन सेव आवर टाइम। ओके, वी कैन इजीली एक्सेस देम। सो यहाँ पे क्या आएगा? शॉर्टकट आइकन। तो फिफ्थ वाला में आएगा शॉर्टकट, शॉर्टकट। ठीक है, ये है फिफ्थ वन। द शॉर्टकट आइकन हैज अ स्मॉल डैश ऑन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो जंप एरो आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। Here you can see ये स्मॉल जंप एरो दिख रहा है, ये वाला इससे क्या पता चलता है? तो फ्रॉम दिस आइकन यू कैन रिकॉग्नाइज एनी फोल्डर, यू कैन रिकॉग्नाइज एनी सॉफ्टवेयर दैट इट इज अ शॉर्टकट आइकन फॉर ओपनिंग दिस सॉफ्टवेयर। यू कैन रिकॉग्नाइज दैट। ओके, यहाँ से इस आइकन, इस जंप एरो से तुम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये शॉर्टकट आइकन है, शॉर्टकट आइकन है। ठीक है, ये फोल्डर और फाइल कहीं और सेव है, लेकिन इसे क्विक एक्सेस करने के लिए हमने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप पे भी शॉर्टकट बना सकते हैं, आप कहीं पे भी, जैसे कि अगर आप किसी फाइल एंड फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप डेस्कटॉप का शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी फाइल के अंदर भी किसी और दूसरी फाइल्स का शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं उसे क्विक एक्सेस करने के लिए। अंडरस्टैंड एवरीवन? So this is about your fill in the blanks and it is completed. Now you can see state true or false. In Windows 7 only one program can be run at a time. In Windows 7 only one program can be run at a time. So this statement is false. Okay, at the same time we can run many programs. So this is a false statement. Second है, an operating system controls all the activities of a computer. Yes, an operating system works like a traffic policeman and it controls all the activities of your computer system. So this statement is true. Now see third one. Right clicking on any icon will display personalized option at the bottom of the displayed list. क्या बोल रहा है कि किसी आइकन पे राइट क्लिक करने पे पर्सनलाइज्ड ऑप्शन दिखता है? नहीं दिखता है। पर्सनलाइज्ड ऑप्शन कब आता है? व्हेन यू क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप यू विल गेट द पर्सनलाइज्ड ऑप्शन हियर। ये ब्लैंक एरिया है डेस्कटॉप का, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रही हूँ। यू कैन सी पर्सनलाइज्ड ऑप्शन कब मिल रहा है मुझे, कब देखने मिल रहा है? जब मैं डेस्कटॉप पे आके राइट क्लिक कर रही हूँ, देन ओनली आई विल गेट दिस पर्सनलाइज्ड ऑप्शन. Okay, and when I click on this icon you will get the properties option at the bottom side. Okay, so डिफरेंस समझ में आया कि क्या है? ब्लैंक एरिया पे करोगे तो आपको पर्सनलाइज्ड ऑप्शन मिलेगा, बट अगर आप राइट क्लिकिंग ऑन एनी आइकन तो आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, ना कि पर्सनलाइज्ड का. सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स. ओके, नाउ सी नेक्स्ट स्टेटमेंट, Windows 4th statement ना. Windows 7 is the latest version of Windows. No.
the latest Windows of Windows is Windows 10. Okay, so Windows 10 is the latest version of Windows, not Windows 7. So this statement is also false. Now see fifth one. The shortcut menu is also called the context menu. Yes, this statement is true. The shortcut menu is also called the context menu. Okay, और ये जो C है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये मैं आपको इसका PDF भेजूंगी, आपको उसको नोटबुक में भी लिखना है इसे। और क्वेश्चन नंबर E जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप नोटबुक में लिखेंगे, बाकी सब आपकी बुक्स में ही रहेंगे। यहाँ देखो D मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑप्शन opens the स्टार्ट मेन्यू, कंप्यूटर आइकन, स्टार्ट बटन और विंडोज बटन। जो स्टार्ट मेन्यू कौन ओपन करता है? विंडोज बटन। ठीक है, कौन सा बटन आएगा? विंडोज बटन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फाइल्स टू स्टोर टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए है आइकन, ऑप्शन नंबर बी है फोल्डर, ऑप्शन नंबर सी है डेस्कटॉप। तो फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फाइल्स स्टोर्ड टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। ओके, सो राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे फोल्डर आएगा। नाउ सी विंडोज इज अ डैश यूजर इंटरफेस। कौन सा यूजर इंटरफेस है? ग्राफिकल है या फिर कैरेक्टर है या फिर वर्ड है? यस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, डायरेक्टली हम आइकन्स पे क्लिक करके कुछ भी कर रहे हैं, कमांड्स एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, so this is about your chapter number 3, and here your chapter number 3 is completed. So complete your notebook. In your notebook you have to write question number C, that is application based question, and question number E, that is answer the following questions and answers. Understand? And rest of the renaming all the exercise you have to done on your book only. Understand? जितनी भी फाइल्स जितने भी एक्सरसाइज है वो आपको अपनी बुक्स में ही लिखनी है, बुक्स में ही करनी है। बस आपको सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको भेजूंगी अभी PDF बना के, वो और क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, that is enough for today. In our last video, in our next video we will start our next chapter, that is chapter number 4, Tux Paint, and I hope Tux you are eagerly waiting for this chapter. This chapter is very interesting and you will definitely enjoy it, I know. So students, bye, take care.